कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ मी साइमा पीरजादा फ्रॉम कराची पाकिस्तान। थैंक यू सो मच इतना प्यार, इतना लव देने के लिए, इतना रिस्पेक्ट देने के लिए। मैं आप लोगों से थैंक यू सो मच कहती हूँ, क्योंकि आप लोगों की वजह से आज हम लोग अब तक वीडियोस बना रहे हैं, कंटिन्यू रखे हुए हैं। बिकॉज स्टार्टिंग में तो आई वाज थिंकिंग कि शायद वीडियोस पर जिस तरह से रिस्पॉन्स आ रहा है, लोग जिस तरह से मुझसे बात कर रहे हैं, तो माइट भी ये वीडियोस का मैं छोड़ दूंगी। लेकिन आप लोगों ने इतना प्यार दिया, इतना सपोर्ट किया। और जहाँ पर मेरी मिस्टेक्स थी तो वहाँ पर आपने उसको करेक्ट भी किया। मुझे अच्छा लगता है जब मेरी कोई मिस्टेक्स निकालते हैं और मुझे करेक्शन करके कमेंट में बताते हैं। थैंक यू उसके लिए सो मच। एंड मैं बहुत ज़्यादा उसके लिए खुश हूँ और शुक्रगुजार हूँ आप लोगों की। और आप लोगों ने इतना अच्छे से मुझे गाइड भी किया और आज मैं यहाँ तक हूँ आप लोगों की वजह से हूँ, क्योंकि आप लोग मेरी फैमिली की तरह मुझे सपोर्ट करते हैं। और येस, यू आर माई फैमिली। और मैं हमेशा से ही कहती हूँ, मैं कभी भी नहीं कहती, इवन तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं आप लोगों के लिए कमेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा आपकी कमेंट्स का रिप्लाई दे पाऊँ। और मैं तकरीबन कमेंट्स का रिप्लाई देती भी हूँ। जब फ्री होती हूँ मैं ज़रूर कमेंट्स चेक करती हूँ और मैं सब कमेंट्स के रिप्लाई करती हूँ और आंसर भी करती हूँ। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो आज हम लोग रिएक्शन देने वाले हैं, वाई डू नॉर्थ ईस्ट इंडियंस लुक डिफरेंट फ्रॉम अदर इंडियंस। नॉर्थ ईस्ट के इंडियंस जो हैं वो अदर इंडियंस से क्यों डिफरेंट हैं, तो इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। इसकी रिक्वेस्ट बेसिकली मेरे पास आई हुई थी और ये रिक्वेस्ट की गई है बेंजामिन मार्क के नाम से हैं, उन्होंने ये रिक्वेस्ट की थी मुझसे। आज हम लोग इस पर रिएक्शन देने वाले हैं। थैंक यू सो मच बेंजामिन मार्क, आपने मुझे इस पर रिक्वेस्ट किया था, सजेशन दी थी, लिंक शेयर किया था। थैंक यू सो मच। चलते हैं आज वीडियो की तरफ, रिएक्शन देते हैं। लेट्स स्टार्ट। How you doing, guys? Thanks for joining me here on FTD Facts. I'm Leroy Kenton, and now in this episode I'm answering a question that I didn't even know exists until some of you guys brought it up to me on Instagram as well as below in the comment section. By the way, follow me on Instagram, guys. Link to that is down below. You can see what's going on outside of these FTD Facts videos, as well as sending me messages. I'm always responding to them. But this question is, why do Northeast Indians look different from other Indians? Now, India is a land of diversity and with many different kinds of people belonging to different races, cultures, and religions. So it is natural that people belonging to various different cultures would look differently. However, people from the northeastern part of India have a different look altogether. And why is that? Northeastern India comprises of 8 states. We have Assam, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Meghalaya, Nagaland, Tripura, and Sikkim. Northeastern India shares its borders with Myanmar, Bhutan, China, Nepal, and Tibet. These countries are comprised of people from almost the same ethnic group. Even with that, there's a variety of ethnic groups that live there. Mainly the Mongoloids, the Indo-Aryans, the Australoids or Austric, and the Dravidians. Now let me pause there because I understand that in today's modern use, the term Mongoloid is often used as a derogatory term, and it's also used to insult people with a variety of different disabilities. However, for the sake of clarity as well as the integrity of the original use of the word, I'm using the term to relate to people in East Asia and Southeastern Asia. So no offense intended, I'm simply using the term how it was originally intended to be used. There's archaeological data that confirms that the Mongoloid race used to live in parts of South Asia during the Paleolithic age. In fact, some anthropologists see modern Chinese people as secondary descendants of Mongoloids. And since the people of northeastern India are also descendants of the Mongoloid people, you can see why all these races share familiar features. So while the original settlers in northeastern India were Mongoloids, the Indo-Aryan and other ethnic groups arrived later. And you can see that there's a huge dominance of Mongoloid element in the population of northeastern Asia. In some ancient texts, the northeastern regions belonged to tribes who spoke languages from the Tibeto-Burman family. Then in other parts of the northeast, there was a race of people who reached Myanmar from the Yunnan region of China and from there to Assam.
The Maetis tribe of Manipur state descended from the Tartars who migrated from China in the 13th to the 14th century, but examining all the groups of people that migrated to northeastern India would take forever. But in short, there are more than 200 very interesting tribes in northeastern India alone who at some point in history migrated from the neighboring countries of China, Myanmar, or Bhutan, and all of them came for various reasons, whether to look for fertile land or some sort of river or valley to conquer. Now let's take a look at something pretty interesting and mind-blowing. Other than the racial differences, there are actually tribal and non-tribal dualities recognized by the Constitution of India that give certain benefits to the many tribal communities in the northeastern parts of India. This was all set up to help them catch up with the rest of society in terms of educational standards and living standards. It's because of reasons like these that northeasterners are often non-recognized and misrecognized. They're also viewed by a large portion of the Indian population as being foreigners, because when other residents of India see people from the northeast, or even if a tourist sees people from the northeast, the automatic assumption is, oh, they're foreigners maybe from China or Japan or Thailand or Nepal, and some label this as withholding the Indianness from the northeastern Indian people, and that causes in many cases for them to be discriminated and marginalized. It's a very common problem for everyone here to ask us whether we are actually Indians. That is very normal. And I wouldn't say it is normal, but it is very common. So there you have it, guys. I hope that answered your question on why there is such a big difference in the look of people from northeastern India. If you enjoyed this video and thought it was interesting and educational, be sure to give this video a big thumbs up, as well as support our sponsors, Grammarly.com. They're one of the leading softwares in improving your written English skills. They have a massive platform with hundreds of spelling and grammatical errors, and as you use it, it'll correct you. Yeah, you'll be surprised the amount of mistakes that you make every single day in English that you didn't even realize. So you can install it for free. The link to that is down below. Many FTD Facts viewers have already started using Grammarly.com because they see the benefit. So join them in their decision. The link is down below. You can also purchase the upgrade for even more features. Hey, but don't go anywhere yet. We have some other videos for you to check out. If you ये थी हमारी वीडियो, वाकई भी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशनल थी। बेसिकली इसमें इन्होंने बताया है कि ये लोग क्यों डिफरेंट लगते हैं, क्योंकि इंडिया के साथ बहुत सारे बॉर्डर्स लगते हैं। तो जब इंडिया का एक वजूद आया था, उस टाइम की ये स्टोरी इन्होंने बताई है कि उस टाइम ये लोग भी माइग्रेट करके आए थे, तो तब से वो इंडिया के हैं। लेकिन बेसिकली वो तो इंडियन ही कहलाएंगे, क्योंकि चाहे वो चाइनीज़ दिखते हैं, चाहे वो मुस्लिम दिखते हैं, चाहे वो पाकिस्तानी दिखते हैं, पहले तो वो मतलब अब तो वो इंडिया में ही रहते हैं और इतने टाइम से रह रहे हैं, तो वो इंडियन ही कहलाएंगे। सो मैंने भी एक मिस्टेक कर दी थी कि मैंने सोचा था कि शायद ये लोग मतलब ये बांग्लादेशी हैं, ये हैं। बेसिकली मुझे आइडिया नहीं था। तो जब मैंने नागालैंड सॉन्ग पर एक रिएक्शन दिया था, सो काफ़ी लोगों ने इस पर गुस्सा भी किया था कि हम लोग इंडियन हैं, हम लोग चाइनीज़ नहीं हैं, हम लोग ये नहीं है। लेकिन ये तो बात सच है, क्योंकि उनको गुस्सा करना भी बनता था। मुझे इतना आइडिया भी नहीं था, लेकिन अब मुझे आइडिया होता जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता कि बेसिकली असम और नागालैंड और ये सारे जो हैं, ये स्टेट्स जो हैं, 8 मेरे ख्याल से स्टेट्स हैं जो कि यहाँ पर हैं, और इन लोगों ने ये लोग बेसिकली लगते चाइनीज़ की तरह हैं, जापानीज़ की तरह हैं, या फिर दूसरे लोगों की तरह बेसिकली। लेकिन ये है लोग इंडियन, क्योंकि ये दिखते उनकी तरह हैं। ज़रूरी नहीं कि वो लोग उनकी तरह दिखते हैं तो वो चाइनीज़ होंगे या जापानीज़ ही होंगे, ऐसा नहीं होता। बेसिकली इंडिया में रह रहे हैं, हमारी तरह दिखते नहीं हैं, बट ये लोग हैं इंडियन। सो इनको उतनी ही रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए जितनी कि दूसरों को मिलती है। और बेसिकली होता ऐसे है कि जैसे कि हम लोग कहीं भी जाते हैं, हम लोग थोड़ा डिफरेंट दिखते हैं। सो हम लोगों को लोग ज़्यादातर समझते हैं कि या तो इंडियन समझ रहे होते हैं, या पाकिस्तानी बोल रहे होते हैं, या फिर बांग्लादेशी बोल रहे होते हैं। मतलब ज़्यादातर बांग्लादेशी नहीं, इंडियन और पाकिस्तानी का वो ज़्यादा किया जाता है, क्योंकि हम लोग दिखते हैं सेम है। सो इस तरह से एक पहचान बन गई है। लेकिन इनकी भी इस तरह से एक पहचान है कि कोई आता होगा तो यहाँ ये कहीं जाते होंगे तो लोग समझते होंगे शायद ये दूसरे मुल्क से आए हुए हैं विजिट करने के लिए, टूर करने के लिए। सो ये इनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती होगी। लेकिन मुझे पता है आहिस्ता आहिस्ता इनको राइट्स मिलते जा रहे हैं और इनके लिए काम हो रहा है। जब से मोदी जी आए हैं तब से इनके ऊपर भी अब फोकस किया जा रहा है।
अगर बात कर ले तो ये लोग बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट भी हैं, एजुकेशन में बहुत ज़्यादा आगे हैं, इनकी एजुकेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, काम में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और काफ़ी गुड लुकिंग भी हैं। अगर फैशन की बात कर लें तो फैशन में भी बहुत ही ज़्यादा आगे हैं ये लोग, सबसे डिफरेंट लगते हैं, डिसेंट लगते हैं और ब्यूटीफुल लगते हैं। मतलब कि अगर इनकी पिक्चर्स वगैरह देखें, मैंने इनकी पिक्चर्स देखी थी और मैंने असम के बारे में काफ़ी चीज़ें इनके बारे में ना, नागालैंड के बारे में, नॉर्थ ईस्ट के बारे में जानने की कोशिश की थी कि ये बेसिकली क्या है। इससे पहले जब से रिएक्शन देना स्टार्ट किया ना, तो तब से मैं ये चीज़ें जानने की कोशिश कर रही हूँ। इससे पहले मुझे इतना आइडिया नहीं था कि नागालैंड क्या है या असम क्या है। बेसिकली अब मुझे आइडिया होना स्टार्ट हो गया है, क्योंकि रिएक्शन वीडियो से ना मुझे ये फ़ायदा बहुत हो रहा है। आप लोग भी बता देते हैं कमेंट बॉक्स में, यहाँ वीडियो से भी देखकर आइडिया हो जाता है। वीडियो मुझे अच्छी लगी, इसमें काफ़ी अच्छे से इन्होंने इन्फॉर्म किया है, लेकिन वही बात है कि इन लोगों के लिए काफ़ी प्रॉब्लम होती होगी। बेसिकली हर कोई तो यही समझता होगा शायद ये ट्रैवल करके आ रहे हैं, टूर कर रहे हैं या फिर ऐसे ही आए हुए हैं, तो उनको पता नहीं बेसिकली दे आर इंडियंस और यहाँ पर ही रहते हैं। इनका एक आइडेंटिटी इंडियन है, लेकिन बस फेस की वजह से लोग इसको रिकग्नाइज नहीं कर पा रहे। एनीवेज वीडियो बहुत अच्छी थी और आई होप आपको भी अच्छी लगी होगी और मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है। सो यस, ये थी हमारी आज की वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मैं हूँ साइमा पीरज़ादा फ्रॉम कराची, पाकिस्तान। बाय बाय।